بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو متحدہ عرب امارات کے ایک ایسے شہر کی سیر کروائیں گے جس کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ آج سے 60 سال قبل جس جگہ پر ریت اور بنجر زمین ہوتی تھی، وہاں آج اس سرزمین پر واقع شہر میں دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح شہر میں سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔ اس شہر میں آنے والے لوگوں کے لیے دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ اس شہر میں ساری دنیا کی دولت بھی آپ کے پاس ہو تو وہ بھی کم ہوگی۔ اس شہر کے لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں دنیا کا سخت ترین قانون ہے۔ اسی قانون کی سختی کی وجہ سے اس شہر میں جرائم کی شرح صرف 1% ہے، اور دنیا کے 10 بڑے ہوٹلوں میں سے 7 صرف اس ایک شہر میں واقع ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا 7 سٹار ہوٹل رکھنے کا اعزاز بھی اسی شہر کو حاصل ہے۔ دوستو، دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت بھی اسی شہر میں ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں UAE کے شہر دبئی کی۔ یہ شہر متحدہ عرب امارات کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کا رقبہ 3850 مربع کلومیٹر ہے، اور اس شہر کی آبادی تقریباً 35 لاکھ کے قریب ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ صرف 15% اماراتی لوگ دبئی میں رہتے ہیں۔ باقی سب کے سب غیر ملکی ہیں، جن میں 45% انڈین، 26% لوگ پاکستانی اور باقی 14% لوگ دوسرے مختلف ممالک کے شامل ہیں۔ اگر دبئی کے تاریخی حوالہ سے اس کی بات کریں تو یہ شہر پہلے ایک ریگستان ہوا کرتا تھا۔ 1833 میں بنی یاز قبیلے کے تقریباً 800 لوگ مخزوم خاندان کی سربراہی میں آ کر خلیج کے کنارے آباد ہو گئے۔ خلیج ایک قدرتی بندرگاہ تھی، جس کی وجہ سے دبئی جلد ہی ماہی گیری کا ایک اہم مرکز بن گیا، اور بعد میں ہیروں اور قیمتی موتیوں کی بھی تجارت یہاں ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس بندرگاہ پر پکی دکانیں تعمیر ہونے لگی، اور بہت جلد ان دکانوں کی تعداد 300 تک پہنچ گئی۔ 20ویں صدی میں دبئی ایک کامیاب بندرگاہ کے طور پر سامنے آنے لگا، اور دور دراز سے آنے والے تاجروں کی بدولت یہ مارکیٹ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی رہی۔ 1930 میں دبئی شہر کی آبادی تقریباً 35,000 افراد پر مشتمل تھی، اور ان میں سے بھی 1/4 حصہ غیر ملکی لوگوں پر مشتمل تھا۔ 1950 تک دبئی کی یہ بندرگاہ سمندری گاب اور کیچڑ سے بھرنے لگی، جسے دبئی کے مرحوم شیخ راشد بن سعید نے کھدوا کر بڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ 1 کروڑ روپے کا منصوبہ تھا، جس کے بعد دبئی بندرگاہ سب سے بڑی بندرگاہ کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ بندرگاہ کی وجہ سے دبئی ایک اہم تجارتی مرکز اور تجارتی زون بن گیا، اور اس شہر کو ایک نئی قوت ملی۔ 1994 میں تیل کی دریافت نے اس ملک کی تقدیر بدل دی، اور اس شہر کی معیشت تیزی سے تبدیل ہونے لگی۔ شیخ راشد مختوم نے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اسی شہر کی جدید ترقی اور تعمیر کے لیے استعمال کیا، جس کی وجہ سے دبئی مزید کاروباری اور مستحکم شہر کی صورت میں سامنے آنے لگا۔ دبئی ایئرپورٹ میں ایک نئی پورٹ اور نئے ٹرمینل کا اضافہ کیا گیا۔ دبئی ایئرپورٹ دنیا کے 10 بڑے اور مصروف ترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے، اور اپنی مصروفیت کے باعث دنیا میں 3رے نمبر پر آتا ہے، جس پر ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب مسافر سفر کرتے ہیں۔ ہاتھوں سے تعمیر کردہ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بھی دبئی میں ہی واقع ہے، اور بندرگاہ کے گردا گرد فری زون بنایا گیا ہے۔ دبئی کی کامیابی کا راز ان کے حکمرانوں کا اپنے لوگوں اور اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونے میں ہے، اور پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کو دوستانہ ماحول فراہم کرنا، اور بزنس پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور ڈیوٹی فری بھی ہے۔ اسی وجہ سے دبئی آج دنیا کا اہم ترین تجارتی اور سیاحتی مرکز بن چکا ہے۔ شیخ زید بن سلطان النہیان، جو کہ ابوظہبی کے حکمران تھے، ان کے بیٹے کی پاکستان میں وارد ٹیلی کام، بینک الفلاح اور ابوظہبی گروپ ہیں۔ یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والا سب سے بڑا گروپ ہے۔ شیخ زید متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر تھے۔ ان کی حکمرانی کے دور میں ہی متحدہ عرب امارات دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہونے لگا تھا، جس کی سالانہ فی کس آمدنی $17,000 امریکی سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔
दुबई एक जदीद किस्म की इस्लामी रियासत है जिसमें मुकम्मल तौर पर इस्लामी कानून नाफिज है। इस रियासत में तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है और तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। दुबई में आप कोई भी लिबास पहन सकते हैं, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। खुश अखलाकी और मेहमान नवाजी दुबई की लातादाद खूबियों में से एक खूबी है। दुबई की सरकारी ज़बान अरबी है, लेकिन अक्सर लोग अंग्रेज़ी ज़बान में भी बात करते हैं। दुबई के मकामी लोग अपना रवायती लिबास पहनते हैं और ख़वातीन अपने जिस्म को ढांपने वाले लिबास का इस्तेमाल करती हैं, जबकि यूरोपीय ममालिक की ख़वातीन निकर में भी नज़र आ जाती हैं। दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया का बुलंद तरीन टावर होने का एजाज़ रखता है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है और इसकी 162 मंजिलें हैं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मंजिलों वाली इमारत भी है, जिसमें दुनिया की तेज़ तरीन लिफ्ट लगाई गई है। इसकी रफ्तार 18 मीटर फ़ी सेकंड है। बुर्ज खलीफा में दुनिया की बुलंद तरीन मस्जिद भी वाक़या है, जो इसकी 158वीं मंजिल पर बनाई गई है। दोस्तों, इससे पहले सऊदी अरब में मौजूद किंगडम सेंटर में मौजूद मस्जिद को सबसे बुलंदी वाली मस्जिद कहा जाता था। इस इमारत में दाखिल होने के लिए आपको 100 से लेकर 500 दिरहम अदा करने पड़ते हैं। दुबई की शाहराह शेख ज़ैद पर वाक़या होटल JWD की ऊंचाई 355 मीटर है। पहले ये दुनिया का बुलंद तरीन होटल था, मगर अब J4 होटल दुनिया का बुलंद तरीन होटल है। सुनहरे रंग के इस होटल की 75 मंजिलें हैं और ये होटल दुबई का एक बेहतरीन सियाहती मकाम भी है। इसके अलावा दुबई के दीगर सियाहती मकामात में जजीरा नकील बहुत मशहूर है। 1990 में दुबई ने सैर व सियाहत पर किसी रकम खर्च करनी शुरू कर दी थी। इसकी वजह से 2000 तक सियाहों की तादाद सालाना 3 मिलियन तक जा पहुंची और दुबई की आबादी 9 लाख तक जा पहुंची। दुबई के साहिल पर अजमेरा के किनारे मसनूई जजीरे पर वाक़या खूबसूरत बुर्ज अल अरब होटल दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है, जिसको देखने के लिए लाखों की तादाद में गैर मुल्की सयाह आते हैं। इस होटल में 5 घंटे क़ियाम करने का सफ़र 15 से 20 लाख पाकिस्तानी रुपए है। ये होटल दुबई की पहचान बन चुका है। दुबई की किसी भी गाड़ी में सफ़र करने के लिए आपको कैश रखना ज़रूरी ना है, क्योंकि आप अपने ATM कार्ड को ही किसी भी किस्म की ट्रैफिक के लिए बतौर रकम के इस्तेमाल कर सकते हैं। दुबई मॉल में एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार एक्वेरियम बनाया गया है, जिसमें दुनिया भर की नायाब अक़साम की मछलियाँ रखी गई हैं। आप 300 दिरहम अदा करके ऑक्सीजन मास्क लगाकर इसके अंदर सैर कर सकते हैं। चाइना दुबई की वसीह मार्केट में सबसे बड़ा तजारती हजम रखने वाला मुल्क है, जबकि अमेरिका, इंडियन और दूसरे ममालिक चीन से बहुत पीछे हैं। चाइना का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा दुबई है, जिसकी वजह से चाइना की मईशत भी काफ़ी मजबूत हो रही है और तरक्की कर रही है। रोज़ाना 4 लाख टैक्सियाँ सियाहों और मुसाफिरों को सफ़र करवाती हैं। दुबई में आपको गुलाबी रंग वाली टैक्सी नज़र आए तो समझ जाएं कि इस टैक्सी की ड्राइवर एक खातून है, क्योंकि ये सर्विस ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए शुरू की गई है, जो मर्द ड्राइवर हजरात के साथ सफ़र करना पसंद नहीं करती। दुनिया के 10 सबसे बड़े होटलों में से 7 दुबई में मौजूद हैं। दुनिया में मौजूद दुबई मॉल के नाम से मशहूर एक शॉपिंग मॉल है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर होने का एजाज़ भी रखता है। दुबई में अक्सर खेलों के बैनुल-अक़वामी मुकाबले होते रहते हैं, जिनमें दुबई ओपन, ATP टूर्नामेंट और दुनिया की सबसे महंगी तरीन घोड़ों की रेस और सहरा में होने वाले गोल्फ टूर्नामेंट शामिल हैं। दुबई की करेंसी को दिरहम कहा जाता है। 1 दिरहम पाकिस्तानी 90 रुपये के बराबर होता है। दोस्तों, दुबई का एक टाइम पाकिस्तान के टाइम के लिहाज से 1 घंटा पीछे है। दुबई एक ऐसे इलाके में वाक़या है जहां पूरी दुनिया से सीधी परवाज़ें जाती हैं। दुबई का कला भी एक मशहूर सियाहती मकाम है। 1787 में तमीर होने वाले इस किले को 1971 में म्यूज़ियम के तौर पर खोल दिया गया। सियाहों की दिलचस्पी के लिए इसमें मुजस्मों के साथ साथ जदीद दुबई की अक्कासी भी की गई है। अलवरका में मौजूद दुबई सफारी फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन तफरीह है, जहां जंगली जानवरों और इंसानों के दरमियान शीशे की एक मोटी दीवार तमीर की गई है। ये पार्क एक वसी रकबा पर फैला हुआ है। इसमें दुनिया का हर जानवर मौजूद है, यानी सफ़ेद शेर, यानी घोड़े,
हाथी, शुतुरमुर्ग वगैरह नुमाया है। दुबई का मकबूल तरीन खेल ऊँटों की रेस है। दोस्तों, दुबई में सबसे ज़्यादा शवारमा इस्तेमाल किया जाता है। दुबई में दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम मिलती है। दुबई में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां सिर्फ आइसक्रीम के लिए आपको 2 लाख रुपए खर्च करना पड़ते हैं। दुनिया में सोने का सबसे ज़्यादा कारोबार दुबई में ही होता है। लोगों के पास इतना सोना है कि उन्होंने अपनी गाड़ियां, हत्ता के टॉयलेट भी सोने के बनवा रखे हैं। दुनिया की सबसे महंगी कारें भी दुबई में ही पाई जाती हैं। हर घर में 3 से ज़्यादा गाड़ियां होना आम सी बात है। दुबई में मेट्रो लाइन सिर्फ 18 रोज़ में मुकम्मल हो गई, जो कि 42 स्टेशन पर मुश्तमिल है। दुबई के कवानीन इंतहाई सख्त हैं। अक्सर जगहों पर आपको CCTV कैमरे लगे नज़र आएंगे। यही वजह है कि आप कोई भी जुर्म करके दुबई की पुलिस से नहीं बच सकते। इस शहर में सड़क पर थूकना और गंदगी फैलाना सख्त मना है। ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। हमदान बिन मोहम्मद दुबई के वज़ीर आज़म हैं। इनके ख़ानदान ने दुबई को इस मकाम पर पहुंचाने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। दुबई की पुलिस दुनिया की अमीर तरीन पुलिस है। इनके पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां हैं, जिनमें मर्सिडीज़, BMW और फरारी शामिल है। आप लोग दुबई में किसी भी औरत को किस नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। दुबई में इस्लामी कानून नाफिज है। इसी वजह से दुबई में जुर्म की शरह 1% से भी कम है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।